ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So, before proceeding towards the actual webinar that is going to be led by Ms. Neha Bilal on how to start businesses with limited resources, I would just like to briefly introduce you to Aura 360's platform. And before even proceeding towards that, I would like to just request that please keep your mics muted till the Q&A session, and the chat box is open. You can drop your feedbacks or your questions during the session on chat box, and because this session is being recorded, right? So we just want to make sure that it's not interrupted, so that when people listen to it afterwards, they do not hear any interruptions, inshallah. So let me just introduce you to Aura 360. And Aura 360, this is a platform, and we got our inspiration from Surah Al-Hadid, which says that on the day you shall see the believing men and believing women, their light running forward before them, and by their right hands it is said unto them, glad tidings for you this day, gardens under which rivers flow, to dwell therein forever. Verily, this is the great success. So this says, Ke Huwal Fawzul Azim. So at Aura 360, this is what we are trying to achieve. We are trying to connect individuals with Fawzul Azim, which is the ultimate and the greatest success of all. We say that we can excel, we can achieve excellence in all the domains, be it business, parenting, health, your legacy, your personal finance, or anything, any domain. But we need to have this in our minds that we need to achieve Fawzul Azim at the end of the day. This is the purpose of our life. And we should be very much clear that ठीक है, we have lots of domains. We have a domain of being a daughter, or we have this domain of being a wife, या एक sister, या बहुत सारे एक इंसान के ज़िंदगी में रोल्स होते हैं। लेकिन हर रोल से बियॉन्ड एक रोल जो है वो है हमारा, कि हम अल्लाह ताला के सर्वेंट्स हैं, and we need to please him before anyone else in this world. So this is what we are trying to achieve at Aura 360, and this is the purpose of Aura 360, कि हम हर कुछ कर देते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए थे। हम इस दुनिया में इसलिए भेजे गए थे ताकि हम अल्लाह ताला को जो है वो मना सकें और अपनी अपनी उस दुनिया की तैयारी कर सकें। दिस वर्ल्ड इज जस्ट अ टेस्ट, एंड एक टेस्ट होता है, उसके बाद यू गेट योर रिजल्ट, सो योर रिजल्ट शुड बी फौजुल अजीम। सो दिस इज द पर्पस ऑफ Aura 360, and how do we do that? We want individuals to lead with faith, integrity and resilience. These are our core values, कि जब तक फेथ नहीं होगा, इंटेग्रिटी नहीं होगी, रेसिलियंस नहीं होगी, ये तीन एट्रीब्यूट एक इंसान को अगर डिफाइन नहीं करते, तो बहुत मुश्किल है कि वो फौजुल अजीम अचीव कर सकता है या नहीं। सो वन टेक अवे जो आपको मेरी तरफ से मिले, जो आपको औरा की तरफ से मिले, वो ये होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का अगर आपसे कोई मकसद पूछे तो आप सोचे ना, आप बस जल्दी से बोलें कि हमें फौजुल अजीम चाहिए, एंड दिस इज़ वेयर यू विल विन। सो उसके पहले मैं आपको अपनी टीम से मिलवाना चाहती हूँ। Aura 360 के पीछे बहुत अमेजिंग लोगों का हाथ है, जिसमें सबसे पहले वी हैव मिस अमरीन रशीद खान। शी इज़ द फाउंडर ऑफ Aura 360, एंड उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि उन्होंने अपनी बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी सर सैयद यूनिवर्सिटी से, फिर उन्होंने MBA किया IB कराची से। Currently, she's pursuing her PhD from Malaysia. Then we have Dr. Shahid Qureshi, who's the chairman of Aura 360. Then next in line is me, Fiza. I'm currently serving as head of trainings for Aura 360, and I'm currently pursuing my ALMA degree in BDS. Then we have Miss Neha Bilal. She'll be conducting your webinar today, and she's working as the head of trainings for our Karachi chapter and is currently a PhD scholar at TU Berlin, Germany. Then we have Miss Iram Shoaib. She's working as head of trainings at our Malaysia chapter, and then Miss Mehreen, she's working as head of trainings for our Gujranwala chapter. उसके बाद हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जिसमें सबसे पहले Aura 360 Women है, जो कि एक्सक्लूसिवली हमने डिज़ाइन किया है फॉर वुमेन, ताकि हम उनको उनके पर्सनल प्रोफेशनल स्किल्स,
उनके चैलेंजेस, उनको हर तरीके से हम इक्विप कर सकते हैं कि वो कैसे एक बेहतर इंसान बन सकती हैं। उनमें उनको हम असेस करते हैं और उनके हिसाब से एक उनको गाइडलाइन प्रिपेयर करते जैसे देते हैं, जैसे एक स्टडी गाइड होती है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका एक ऑरा बन जाएगा, या आप किस तरीके से जो है वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें हम एक्सक्लूसिव वन ऑन वन मेंटोरशिप या कोचिंग देते हैं वुमेन को। पहले हम उनको असेस करते हैं, उनकी हम सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ में उनको हेल्प आउट करते हैं, और फिर उस हिसाब से हम उनके लिए कोचिंग प्लान जो है वो तैयार करते हैं, जो कि कभी 3 मंथ्स का हो सकता है, कभी 6 मंथ्स का हो सकता है, कभी 1 ईयर का हो सकता है। सो ये हमारा ऑरा 360 वुमेन प्रोग्राम है जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस। इसमें हम सिर्फ वेमेन को टारगेट नहीं करते, इसमें हमारे पास सारे इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, और इसमें भी हम उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। बस फ़र्क इन दोनों में ये है कि वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ वेमेन के लिए है, तो उसमें सिर्फ वेमेन आपके जो हैं वो मेंटोर्स होते हैं। लेकिन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस में हमारे पास इसमें मेल मेंटोर्स भी होते हैं, ताकि हम डिफरेंट डोमेन्स को जो है वो केटर कर सकें। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी जिसे कहते हैं कि प्रोग्राम है, वो है ग्लोबल मदर एक्सलेंस कैंप, जिसको इनिशियली हमने आईबी कराची से किया, लेकिन अब हम इसको ऑरा 360 के प्लेटफॉर्म से करते हैं। और ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है जिसके हम 9 सीजन्स अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, और अब इसका सीज़न 10 हम लॉन्च करने जा रहे हैं जून 23 को। सो ये एक वो प्रोग्राम है जो कि हमारे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि इसमें हमने एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट किया है, मदर्स का, जिनके लिए ऑफन चीज़ें नहीं होती हैं, या हम देखते हैं कि जो पर्सनल एक्सेलेंस या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो वुमेन के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, मोस्टली मेल्स के लिए होते हैं, लेकिन मदर्स के लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो हम इस प्रोग्राम में उनको 7 डिफरेंट डोमेन्स में इक्विप कर रहे होते हैं। हमारे पास इसमें नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स आते हैं, और फिर उसके बाद हम मदर्स की 1-to-1 मेंटोरिंग करते हैं। पहले हम उनको प्रोग्राम में एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज से चीज़ें सिखाते हैं, जिसमें हम उनको बिजनेस करना सिखाते हैं, उनकी पेरेंटिंग को इम्प्रूव करना सिखाते हैं, उनकी लेगेसी कैसे बनेगी, पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगी, ऑल वाया फेथ, इंटेग्रिटी एंड रिजिलियंस। और अल्टीमेटली, क्योंकि एक मदर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पूरे नेशन की, तो वो अ, अगर एक मदर एक्सेल करेगी तो ऑब्वियसली उनकी जो आगे आने वाली नस्ल है वो भी इससे बेनिफिट करती है। तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जिसमें हमें जो है वो ग्लोबली मदर ज्वाइन करती हैं। फिर उसके बाद हमारा बच्चों का प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एक्सेलेंस कैंप फॉर टीन्स। इसके हम 4 सीजन्स कर चुके हैं, ऑन साइट भी करे हैं, ऑनलाइन भी करे हैं, और अब हम इसको जुलाई में दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका सीज़न 5। तो ये बच्चों का प्रोग्राम है। टीन एजर्स इसमें ज़्यादातर आते हैं, 13 से 19 के बच्चे, और इसमें हम उनको 9 मॉड्यूल्स जो हैं वो 9 डेज के ऊपर सिखाते हैं। और ये इसके बारे में हम बिल्कुल एंड में बात करेंगे। लेकिन ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि हम इसमें थ्योरी नहीं सिखाते, ना मदर्स को थ्योरी सिखा रहे, ना बच्चों को थ्योरी सिखा रहे। हम उनको एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ के ज़रिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ इक्विप कर रहे हैं, जो कि नीड ऑफ द टाइम है। और वंस अगेन वही बात जो मैं आपसे शुरू में कही, कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी मदर्स को, अपने विमेन को, मेन को, सारे सेगमेंट्स को, जितनी भी हमारी ऑडियंसेस हैं, हम उनको फौजल अजीम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि आप हर चीज़ करो, हर चीज़ में आपके अंदर एक्सेलेंस होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्पस इन लाइफ क्या है, कि आपने हर चीज़ क्यों करी, ताकि आप अल्लाह ताला को अपने से राज़ी कर सको। तो हमारी कुछ पास ग्लिम्सेस हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हुए प्रीवियसली आईबी कराची से हुए, अब ऑरा 360 से होते हैं। उसमें विमेन एक्सा प्रोग्राम है, जेंडर इक्विटी है, विमेन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। तो अब तक ऑरा 360 से हम 2000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर चुके हैं। ये सिर्फ विमेन का रेशो लिखा हुआ है, हमने इससे ज़्यादा हम बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, मदर्स को ट्रेन कर चुके हैं। और जो हमारी पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स हुई हैं वो कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, यहाँ पर हम प्राइमरीली अपनी ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमने अपने प्रोग्राम्स प्रीवियसली करे। ये फैसलाबाद में हमने अपनी ट्रेनिंग की थी। उसके बाद ये ग्लोबल मदर एक्सेलेंस कैंप का पहला पहला बैच था जो कि आईबी कराची से हुआ। और उसके बाद 2021 में वी वॉन यूसैसबी अवार्ड फॉर जी मैक, क्योंकि जी मैक की टीचिंग पेडागोजी वो थी जो कि किसी और
कहीं और ऑफर नहीं हो रही थी। तो हमने एक ऐसा सेगमेंट टारगेट किया जिसको कोई भी नहीं देख रहा था, और इसकी इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजी की वजह से इसको 2021 में अवार्ड मिला। तो दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम। उसके बाद ऑरा 360 की मलेशिया चैप्टर में इनाग्रेशन हुई, फिर गुजरांवाला में इनाग्रेशन हुई। उसके बाद ये जी मैक्स सीजन 9 हुआ हमारा जनवरी में। प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जस्ट अ मिनट। Thank you. So we were joined by Dr. Javed Iqbal. Like I mentioned कि हमारे पास GMAC में लोकल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं, अपने अपने डोमेन्स के एक्सपर्ट आते हैं। हर सीजन में एक हम अपना डोमेन इंक्रीज कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने 6 डोमेन्स ऑफर किए, 6 मॉड्यूल्स ऑफर किए। अब हमने एक और इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ा दिया है, बिकॉज GMAC सीजन 10 जब लॉन्च होगा वो एक मेगा सीजन है। और हर सीजन में हम जो अपनी मदर से चीज़ें लर्न करते हैं वो हम अपने प्रोग्राम का पार्ट बना लेते हैं। जिसमें वो स्ट्रगल कर रही होती हैं वो हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम का पार्ट बन जाता है। ये लाइफस्टाइल एक्सीलेंस कैंप था जिसमें लाइक आई मेंशन कि हम ऑनलाइन भी कराते रहे हैं, ऑन साइट भी कराते रहे हैं। तो ये वो उसकी ग्लिम्सेस हैं। और नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर वेबिनार, जो कि मिस नेहा बिलाल इसको लीड करेंगी। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर, शी इज़ वर्किंग एज हेड ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर आवर कराची चैप्टर, एंड शी इज़ करंटली अ PhD स्कॉलर TU बर्लिन जर्मनी। और हमारी ये बहुत पुरानी साथी हैं। हम लोगों का साथ मैम नेहा के साथ कोई 10 years 11 years का हो चुका है। सो शी विल बी लीडिंग दिस वेबिनार ऑन स्टार्टिंग बिजनेस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। सो बिफोर दैट, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन अगेन, कि आपको एट एनी टाइम व्हेन यू फील कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। एंड जो हमारा लास्ट सेशन होगा, यानी जब हम एंड की तरफ जाएंगे, सो आप जो हैं वो अलाउड होंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकें। सो ओवर टू मैम नेहा, आई एम जस्ट मेकिंग यू द एडमिन। Um, are my slides visible? Is it Uh, Miss Shakila has mid-form zakat? give me a minute. एक मिनट मैं कर रही हूँ। हाँ, they are visible now? जी, they're visible. Okay, thank you, Shiza, for the introduction. Assalamu alaikum. My name is Neha Bilal, and I'll be conducting today this webinar on how to start a business with limited resources. Mm, okay, a little brief about my profile and experience. Currently, I'm pursuing my doctoral studies at Technical University of Berlin in Germany. And my research is on facilitating sustainable Pakistani women micro businesses through microfinancing support. I have done my master's and bachelor's from IBA Karachi back in 2021 and 2016. And I have an 8+ years of experience in managing and execution of various diploma and training programs for women entrepreneurs across Pakistan. And currently, I'm working in my family business social startup named as Gear Trust, generating employment alternatives for self-reliance. Okay, so the key learning points today that we will be focusing on in this webinar is starting with what you have. Like, अगर आप में से कोई भी अपना business start करना चाहता है and उनके पास इतनी enough resources या इतना capital नहीं है कि अपना business start कर सकें, तो हम उसको कैसे cater कर सकते हैं, वो कौन सी strategies हैं, अपने अवेलेबल मीन्स से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आज हम वो इस वेबिनार में सीखेंगे. Secondly, what are the cost-effective marketing strategies and selling platforms which we can use? What are the bootstrapping strategies जो हम लोग adopt कर सकते हैं और अपने business को start कर सकते हैं? So my question to you people is that what do we need to start a business? यानी कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपना एक स्टार्टअप करना है या एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप लोगों के जहन में वो कौन सी चीज आती है सबसे पहले कि हाँ ये तो जरूर चाहिए, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए? अच्छा, ये
money. एग्जैक्टली कैपिटल कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें लगता है कि इसके बगैर तो बिजनेस नहीं शुरू हो सकता. राइट, एनीवन एल्स? अच्छा, ये मैम डिटर्मिनेशन चाहिए होती है. डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, बिल्कुल सही. मार्केटिंग चाहिए होती है, एज मारिया ने कहा. जी उस सही. बिजनेस के बारे में मालूमात चाहिए, स्किल्स चाहिए. हम्म बिल्कुल, इंफॉर्मेशन चाहिए. मतलब जिस बिजनेस को आप शुरू करने लगे हैं उसके बारे में अगर आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम तो आप ऑब्वियसली उस पे वर्क नहीं कर सकते. राइट. तो यही कुछ चीजें हैं दैट जो कि वी थिंक दैट वी नीड. राइट. कि हमें सफिशिएंट फंडिंग चाहिए, एक वेल डेवलप्ड बिजनेस प्लान चाहिए, बिजनेस आइडिया चाहिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर ओन बिजनेस सेटअप. सो स्टार्टिंग अ बिजनेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज इज पॉसिबल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नामुमकिन काम है कि हमारे पास अगर कम वसाइल हैं तो हम अपना कारोबार नहीं शुरू कर सकते. की थिंग इसमें ये होती है दैट यू हैव टू स्टार्ट लीन. लीन का क्या मतलब होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. वी हैव टू बी फोकस्ड एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट वी ऑलरेडी हैव. ठीक है, जो आपके पास इस वक्त रिसोर्सेज हैं उसी से ही आपको काम शुरू करना आना चाहिए. तो एक कॉन्सेप्ट है दैट विच वाज प्रपोज्ड बाय सारस सारस्वती, जो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर थी, जिन्होंने प्रपोज किया था द आइडिया ऑफ इफेक्चुएशन. कि एंटरप्रेन्योर स्टार्ट विद द मीन्स इन हैंड. राइट. यानी कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस, जो भी बंदा एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको उन वसाइल के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए जो उसके पास इस वक्त मौजूद हैं अपने हाथ में. अ, तो उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था इफेक्चुएशन. राइट. एंड दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स, जिसको अगर हम अच्छी तरह से समझें तो मे बी वी कैन सी कि हाँ हम भी अपना बिजनेस कम रिसोर्सेज से शुरू कर सकते हैं. पहला उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था बर्ड इन हैंड. बर्ड इन हैंड के अंदर आपकी 3 चीजें आती हैं, दैट हु एम आई, व्हाट आई नो एंड whom आई नो. यानी कि आपकी क्या सलाहियतें हैं जिसको लेते हुए आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आप क्या चीज जानते हैं, यानी आपकी एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस किस चीज में रह रहा है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें. और आपका सोशल नेटवर्क क्या है, whom आई नो, यानी कि आप अपने अतराफ में किन किन लोगों को जानते हैं जिनकी मदद से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं. ठीक है. यानी आप अपने दस्तयाब जराए से कैसे आगाज करें. दिस इज व्हाट इज नोन एज द बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल. अच्छा, काइंडली म्यूट योर सेल्फ प्लीज, ताकि वो डिस्टरबेंस ना हो. अच्छा, सेकंड सेकंड प्रिंसिपल हमारा अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल होता है. अफोर्डेबल लॉस का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं कितना वक्त, पैसा और मेहनत उसमें उस बिजनेस को शुरू करने में लगा सकता हूँ. ठीक है. एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. यानी ऐसा नहीं है कि वो जी लाखों की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और अगर वो बिजनेस नहीं काम किया तो फिर आप कैसे ग्रो करेंगे. राइट. तो आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि अगर आपका बिजनेस नुकसान में चला भी जाता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान या लॉस फेस ना करना पड़े. ठीक है. थर्ड प्रिंसिपल जो सारस्वती का है, वो ये कहता है दैट यू नीड टू डेवलप अ टीम. ठीक है, इसको कहते हैं क्विल्ट क्विल्ट प्रिंसिपल. क्विल्ट का मतलब है कि आप उन लोगों के साथ एक टीम बनाते हैं. राइट. जो कि आप जैसे ही लोग हैं, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं. एक पार्टनरशिप, आप शराकतदार, एक पार्टनर ढूंढें अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, जो अपने वसाइल और स्किल्स को आपके साथ इन्वेस्ट करेगा और आपका बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा. The fourth principle was the lemonade principle, गैर मुतवक्के हालात का इम्कान. यानी we need to lemonade principle ये कहता है that we need to leverage the surprises which come along the way. यानी कि आपके बिजनेस में हर दफा चीजें स्टेबल नहीं रहेंगी, अप एंड डाउन होगा, तो आप उनको भी कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आपको ये प्रिंसिपल बताता है. ठीक है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पायलट इन द प्लेन.
ठीक है, पायलट इन द पेन प्रिंसिपल आपको ये बताता है दैट यू नीड टू स्टार्ट ऑफ राइट अवे। जो भी चीजें आपके पास हैं अपने कारोबार के लिए, जो वसाइल आपने जमा कर लिए हैं, उसके साथ बस आप अपना काम शुरू करें। आप वेट नहीं करें, आप एनालाइज नहीं करें। कभी कभार इंसान बहुत सोचने लगता है और वो अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहा होता। राइट, अगर आपने बेसिक चीजें आपके पास हैं तो आप बस उसको ऑफ शूट कर लें, अपना पहला कदम लें, फिर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने बिजनेस को इंक्रीज करें। ठीक है, तो एक शॉर्ट सी वीडियो है यहाँ पे रिलेटेड टू द इफेक्चुएशन थ्योरी। Hey, entrepreneurs. Ever feel stuck because you एक don't have मिनट। the perfect plan or endless resources to start your dream business? Well, today I'm going to introduce you to effectuation theory, a game-changing framework for building a startup, especially. Hey, entrepreneurs. Ever feel stuck because you don't have the perfect plan or endless resources to start your dream business? Well, today I'm going to introduce you to effectuation theory, a game-changing framework for building a startup, especially in uncertain times. Let's jump in. Most people think starting a business is all about setting a clear goal and creating a detailed plan to get there. But let's face it, things rarely go as planned, especially in the startup world. Effectuation flips this approach on its head. Effectuation is a decision-making approach developed by Sarah Saraswati. Asks one simple question: what do you already have? Think about your skills, resources, and connections. These are your building blocks. Here are 3 key principles that make effectuation so powerful. 1. Bird in hand principle. Start with what's in your hand: your knowledge, your tools, your network. Ask yourself, what can I create with these? 2. Affordable loss principle. Instead of chasing big wins, focus on what you can afford to lose. Take small, calculated risks that won't break the bank. 3. Crazy quilt principle. Don't do it alone. Collaborate with people who bring fresh ideas and resources. They're part of your journey. Let's say you're a baker who dreams of starting a cafe. Instead of waiting for investors, you start small, selling cakes online. You collaborate with a local coffee shop to display your pastries. Over time, you build your brand and expand. That's effectuation in action. So, if you're feeling overwhelmed, remember, you don't need to see the whole staircase to take the first step. Start where you are, take smart risks, and build as you go. That's the power of effectuation theory. If this resonated with you, ओके, सो ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट इफेक्चुएशन थ्योरी, जो कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम लेके चलें तो हम अपने मौजूदा वसाइल और अपने पार्टनरशिप्स के थ्रू और अफोर्डेबल लॉस यानी कैलकुलेटेड रिस्क के थ्रू अपना बिजनेस बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ये एक फ्रेमवर्क था जो कल्मिनेट होता है जब आप फ्लक्चुएशन थ्योरी की बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी जो अवेलेबल मीन्स हैं, जब आप उनसे शुरू करेंगे, लोगों से मशवरा करेंगे, लोगों को अपने आइडिया के बारे में बताएंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, पार्टनरशिप क्रिएट होगी, तो इन ऑल न्यू मीन्स एंड न्यू गोल्स इमर्ज होंगे। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द रिसोर्स क्लाउड। ठीक है, जो कि बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल के बारे में जैसे हमने बात करी, तो हम में से सबको इसके ऊपर बेसिकली वर्क करना चाहिए। राइट, कि मेरा जो बर्ड इन हैंड है वो मैं किस तरह डेवलप कर सकती हूँ। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ तो एटलीस्ट ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को पता हो अपने बारे में। राइट, कि मैं खुद कौन हूँ, मेरी क्या सलाहियतें, मेरे क्या हुनर हैं, मैं किसको जानती हूँ, मैं क्या जानती हूँ। राइट, कि मेरी क्या ट्रेनिंग्स थी, क्या क्वालिफिकेशंस थी जो मैंने करी अपनी लाइफ में पहले, या मैं अभी कर रही हूँ, और मैं अपने अतराफ में किस किस को जानती हूँ जो मेरी हेल्प कर सकता है, मेरा कस्टमर बन सकता है या फिर मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। सो वी हैव टू मेक आवर ओन रिसोर्स क्लाउड। राइट, तो ये हम किस तरह कर सकते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं दैट आप अपनी करेक्टरिस्टिक्स को देखें कि हु एम आई अ क्रिएटिव पर्सन, एम आई अ लविंग पर्सन, मैं परसिस्टेंट हूँ, प्रोएक्टिव हूँ,
ठीक है, व्हाट आई नो कि मैंने अपनी पास्ट में क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी हूँ, या मैं रिसर्च अच्छा कर लेती हूँ। तो डिफरेंट तरह की फील्ड्स होती हैं जो इंसान परसू करता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे या जानेंगे, देन इसी से आपके जहन में बिजनेस आइडियाज इमर्ज होंगे, राइट। एंड whom I know मीन्स कि मेरे अतराफ में कौन कौन लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई नेबर्स, माई कोलीग्स, एक्सेट्रा, राइट, हु कैन हेल्प यू become your partner in business, right, and in growing your business. सो इसी बेसिक प्रिंसिपल्स को हम अगर या कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि लाइव एग्जाम्पल्स के किस तरह से लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ठीक है, तो इसमें केस स्टडी है अस्मा सरफराज की। शी इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि होम बेस्ड काम इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये होस्ट चेंज हो गया है किसी तरह से। Okay, just let कैसा? me check. Let me check. ओके। Oh, can you continue? अच्छा, एक मिनट। दरअसल वो केस स्टडी जो है वो हाँ. देखने से ज्यादा समझ, या मैं वीडियो चला देती हूँ कोई। अच्छा नहीं, मैं तो शेयरिंग का बटन इज नॉट ओके, लेट मी। ओके, सो बेसिकली अस्मा सरफराज की केस स्टडी है जिसमें वी कैन सी कि किस तरह से शी वाज अ सिंगल मदर एंड उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया from the available resources that she had, right? And she wanted to support her family क्योंकि वो मतलब एक स्ट्रगलिंग मदर थी, उनको अपने You अपने are the घर पे। host now, Neha Maju. अच्छा, उनको अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। अ, ठीक है, तो वो अपनी स्किल्स को ढूंढने निकलती हैं, दैट हाउ कैन शी व्हाट शी कैन डू टू सपोर्ट हर फैमिली, वो किस चीज पे अपना बिजनेस सेट कर सकती हैं। एक मिनट। तो हर पैशन या उनका बर्ड इन हैंड क्या था कि वो कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती थी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कुजीन्स, और वो बनाती रहती थी। अपनी जो भी सेविंग्स होती थी वो इन कामों में इन्वेस्ट करती थी। उन्होंने अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश करने के लिए शी डिड अ फ्यू कुकिंग एंड बेकिंग कोर्सेज फ्रॉम वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ताकि उनकी ये स्किल और मजीद बेहतर हो जाए। एंड देन लेटर ऑन उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज बनाया और उन्होंने लो कॉस्ट मार्केटिंग शुरू कर दी। उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, और सबसे पहले आपको जो ऑर्डर्स देते हैं वो आपके अपने अतराफ के लोग होते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, राइट। एंड इस तरह उनका अपना बिजनेस चलने लगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करी, उसमें एक विजिटिंग कार्ड बनाया, और छोटे छोटे एग्जीबिशंस में, फूड स्टॉल्स में वो पार्टिसिपेट करने लगी। उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा खट्टा मीठा एट होम। ठीक है, और उसकी ब्रांडिंग करी, एंड शी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम हर होम एंड विद अ वेरी लो लो कैपिटल, लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड शी इज डूइंग वेल माशाल्लाह। सो अस्मा सरफराज का रिसोर्स क्लाउड क्या था, राइट, कि वो कौन थी। वो एक कुकिंग बहुत अच्छी करती थी। वो कुकिंग बहुत मतलब उसकी स्किल था, उसका पैशन था टू कुक, राइट। एंड उसको क्या चीज़ आती थी, उसने ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए थे, बेकिंग क्लासेस लीनी थी। ये ट्रेनिंग्स उसको, दिस वाज समथिंग दैट शी न्यू, राइट, एंड विच पॉलिश्ड हर स्किल सेट। एंड होम आई नो कि उसको, वो अपने अतराफ में किन लोगों को जानती थी, वो अपने नेबर्स को जानती थी, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह को जानती थी, राइट। तो ये अस्मा सरफराज एन एंटरप्रेन्योर, होम बेस्ड फीमेल एंटरप्रेन्योर का एक रिसोर्स क्लाउड है, जिसके बेसिस पे उसका बर्ड इन हैंड है, जिसके बेसिस पे उसने अपना बिजनेस शुरू किया। So this is how we can make our own resource cloud, which can help us to reflect कि मैं अपनी बिजनेस की शुरुआत किन स्टेप्स और किन स्टेजेस से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह की बहुत दूसरी वेरियस केस स्टडीज हैं हमारे पास, जो कि डिफरेंट एरियाज में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स काम कर रही हैं। बेसिकली मेरा रिसर्च क्योंकि फीमेल साइड पर है, इसलिए मेरे पास केसेस वैसे हैं, लेकिन वैसे वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान दैट आर वर्किंग बोथ मेल एंड फीमेल। लाइक अजरा स्टार्टेड हर ओन ब्यूटी सलोन, उन्होंने अपना फ्लायर बनाया, एंड वो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग कर रही है सोशल मीडिया पे, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं।
इसी तरीके से आमना इमरान ने अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट किया जो कि वो लोगों को वेबसाइट, लोगो, बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, राइट? So here's another video. एक मिनट। Now, just think like that. And that's right. Hi. Sean. He wants to start a business, but he doesn't know how to start his own business. That's why I'm sharing this tip for starting your own business. Tip number 1, do what you love. The great driving power of an entrepreneur is the passion in them is born from their love for what they do. When starting your own business, was a startup process with enough cash. Tip number 3, you need a team. There is a great strength in teamwork. You will always need some level of support when starting your own business. You may need to find a mentor who can always guide you and give you invaluable advice. You can also subscribe to a consultancy firm who care enough to know you are just starting a new business. Tip number 4, get some clients, make the contacts. You should not wait to start your business officially before you start getting your clients or customers or building the necessary network around your business. Doing this will give you some assurance that you are creating a business with a market. Tip number 5, write it and plan it. Creating a business plan is highly important. It helps you understand and investigate your business idea. A solid business plan will help you see and separate reality from expectations. Tip number 6, do the research. Writing a business plan means you are ready to do a lot of research, asking questions, surfing the internet, and reading some books. When you're starting your own business, you should be well informed about your industry, competition, customer behavior, market risk, and opportunities. Tip number 7, get professional help. You do not have to be an expert in everything about your business. Although you may have to multitask yourself when starting your own business, you will still have to use some professional services. Tip number 8, build your cash reserve. Financing is a critical part of your business success. When starting your own business, you can save up if you can, or approach potential business investors and lenders. You must be open to different ideas of raising your capital. Normally, traditional lenders do not like new ideas. This means a lot of risk for them. They always love businesses with proven track records. Tip number 9, right from the blow of the whistle, be professional. Starting off, your business should show professionalism. This will require getting all the accoutrements like a business card, a website if you can afford it, a business email address, and treating customers in a highly professional manner. And tip number 10, solidify your legal framework. Getting your business fully compliant with available laws saves you from a lot of headaches and financial trouble in the near future. Does your business need to be registered? Do you need a legal framework for your employees? What about your tax issues? You can contact a legal expert for you to have the right information and build your legal framework.
Um, okay, so coming back to the presentation, so basically these were some of the tips that we can, take in mind when we are starting our own business startup. अच्छा, so हमारे कुछ there are certain other steps that we can also follow अगर जब हम लोग we are thinking about starting our own startup. So once few essential steps are that step number one, that जो भी idea हमारे जहन में है it should be clear and simple, right? Focus on a problem that you can solve using your skills or knowledge. यानी कि कोई भी ऐसी चीज, जैसे आपके जहन में आइडिया आता है कि मैं कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करूं, या मैं कोई कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट करूं, या मैं परफ्यूम्स का ब्रांड लॉन्च करूं, तो उस आइडिया को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस पहला बिजनेस मॉडल जितना आप लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल पे जा सकते हैं, ट्राई टू स्टार्ट विद दैट, ताकि चीजें जितनी सिंप्लीफाइड रहती हैं उतना बिजनेस शुरू करने में आपको हेल्प होती है. Then step number 2 is that validating your idea before spending. ठीक है, इसका ये मतलब है दैट कि जैसे आपके जहन में एक आइडिया आता है तो फौरन से हम उसमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके और फौरन से एक प्रोडक्ट डिजाइन ना करें, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए, एंड वी ट्राई टू सी के क्या उस आइडिया की डिमांड मार्केट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा एक रिसर्च करें, लोगों से बात करें, पोटेंशियल कस्टमर्स से. यू ट्राई टू पोस्ट ऑन ऑनलाइन कम्युनिटी कि हाँ भाई इस चीज़ की क्या डिमांड है, क्या सर्टेन क्लोथिंग ब्रांड की जो मैं चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान में या कराची में लॉन्च करूँ, तो क्या लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या लोग उसको डिमांड करते हैं. तो इस तरह के हमारे पास गूगल फॉर्म्स सर्वेज होते हैं जो कि आप फिल आउट कर सकते हैं, एंड टू ट्राई टू नो कि कस्टमर क्या सोचता है उसके बारे में. इसी तरीके से एक MVP बनाने का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट. कि जब जब आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले होते हैं तो आप सबसे पहले वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट एकदम से नहीं बना देते, बल्कि आप उसका सबसे मिनिमम फॉर्म पहले बनाएं, राइट? अगर मुझे गाड़ी बनानी है तो सबसे पहले मैं एक बाईसाइकिल टाइप की कोई चीज बनाऊं जो कि उससे मेरे फाइनल प्रोडक्ट से मिलती जुलती होगी, देखने के लिए कि क्या ये चीज कितनी एक्सेप्टेबल है मार्केट में. ठीक है, तो उसका सिंपलेस्ट वर्जन बनाया जाए सबसे पहले, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड ऑन किया जाए. स्टेप नंबर 4 इज मार्केटिंग फॉर फ्री, यानी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग आप अपने बिजनेस की करें जिसमें बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़े आपको. उसका सबसे बेहतरीन तरीका इज डिजिटल मार्केटिंग नाउअडेज, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, जिसमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करें, फेसबुक ग्रुप्स, कम्युनिटीज के ऊपर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें. वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है टू कम्युनिकेट योर आइडिया. एक बंदा आपका कस्टमर बनता है, वो फिर दूसरे को रेफर करता है, तीसरे को रेफर करता है, इस तरह से आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है. फिर आप अपने बिजनेस को, जैसे भी वीडियो में आया कि प्रोफेशनली बनाना है, राइट? कि एक बिजनेस का नाम रखें, उसका एक स्लोगन हो, टैगलाइन हो, कोई फ्लायर हो, विजिटिंग कार्ड हो जो आप डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर्स सच एज कैनवा. ठीक है, जिसपे आप इजीली अपना लोगो बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं और उसको मार्केट कर सकते हैं. और ये भी कुछ साइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग लोगो और फॉर थिंकिंग अबाउट अ ब्रांड नेम. ओके, सो डू वी हैव टाइम फॉर ओके, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर विल कम बैक टू द वीडियो. स्टेप नंबर 5 इज दैट वी कैन स्टार्ट विद सर्विसेज, यानी कि एक होता है सर्विस बिजनेस और एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. कि मैं एक कुकिंग का फॉर सपोज कोई बिजनेस लॉन्च करूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, और एक होता है कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँ अपनी. तो फ्रीलांसिंग आजकल बहुत लोग करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और उसमें वो डिफरेंट स्किल सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो कि आजकल बहुत इन डिमांड हैं, जैसे कि मार्केटिंग सर्विसेज हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग. तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं, बिकॉज हर कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है जो उनके लिए फ्रीलांस कर सके.
राइट। और फ्रीलांसिंग में लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होती है कि आप बस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं एंड यू स्टार्ट मार्केटिंग। फिर एक और आपको चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट यू हैव टू डू इज ट्रैकिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, राइट। मतलब आप अपनी आपके पास स्प्रेडशीट्स हों जिस पे आप अपनी इनकम, कस्टमर फीडबैक, कॉस्ट वगैरह को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके लिए आप ये इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, सच एज क्विक बुक्स एंड जीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनके मिनिमल चार्जेस होते हैं, ईयरली पेमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। आप इनको अपने स्टार्टअप यानी जब आप बिजनेस शुरू करें तो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को इसके ऊपर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपको अपने कैश फ्लोज का आइडिया रहे कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ, कितना मेरे लॉसेस हैं और एक्सेट्रा। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वी नीड टू कीप ऑन कंटिन्यूसली लर्निंग, यानी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, हमें हमेशा कुछ ना कुछ हम कोर्सेज करते रहें ऑनलाइन, यूट्यूब पे, लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर। काफ़ी फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, कोर्सेरा पे होते हैं, जिससे हम कोई ना कोई चीज़ सीखते रहें, राइट। मैंने यहाँ पे काफ़ी लिंक्स भी मेंशन किए हुए हैं विच वी कैन शेयर विद यू लेटर ऑन, जिस पे आप लोग इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। एंड लास्टली ये स्ट्रैटेजी जिससे हम कहते हैं ना कि कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को शुरू करना, तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जिससे हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे इस वेबिनार में आपको, दैट इज कॉल्ड एज बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का भी यही मतलब होता है दैट यू स्टार्ट योर बिजनेस विद योर ओन मनी, राइट। मतलब आपने एक्सटर्नल फंडिंग इस्तेमाल नहीं करी, आपने बैंक से लोन नहीं लिया, बल्कि आपने अपने ही पैसे जो सेविंग्स थी वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी। तो इसको कहते हैं कि अपने बिजनेस को बहुत ही लीन स्टेज से आपने शुरू किया, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ किया, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया, डायरेक्टली बहुत लाखों की इन्वेस्टमेंट लेके नहीं डाल दी कि उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन बूट स्ट्रैपिंग करने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको लो कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस की कि आप लो कॉस्ट मार्केटिंग करें, फाइनेंसेस भी मेंटेन करने हैं तो खुद से करें, क्या कहते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, बूट स्ट्रैपिंग की केस स्टडी थी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जो मुझे मिली थी, आई थॉट टू डिस्कस इट विद यू, कि किस तरह से ये दो लोग थे पार्टनर्स, अली एंड अनम, एंड दे बोथ वर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और इन्होंने अपनी जार टेक सोल्यूशंस के नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी। इन दोनों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करी थी वो $10,000 करे थे। मतलब जो कि ऑब्वियसली अगर आप अमेरिकन मतलब डॉलर टर्म में देखें तो ये मिनिमम बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट थी, जो मतलब दे वर डूइंग इट फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, राइट। और दोनों पार्टनर्स थे। अच्छा, फिर उन्होंने अपने बिजनेस को एक बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक्स के थ्रू ग्रो किया। इनके ऑपरेशंस जो थे वो बहुत लीन थे, बिकॉज अली एंड अनम बोथ यूज टू हैंडल ऑल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देमसेल्व्स, यानी उन्होंने बाहर से लोगों को हायर नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है उनको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने खुद से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल में किया, अपनी सेविंग्स और ओवरहेड कॉस्ट को लो रखा, ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग को लेवरेज किया, यानी कि बेसिक वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मार्केट किया, और अपनी आउटसोर्सिंग को ऑप्टिमाइज किया। मतलब वो फ्रीलांसर्स को हायर करते थे जो कि घंटों के पैसे ले लेते थे, ऐसा नहीं कि फुल टाइम के लोग नहीं बैठते थे, वरना उनको ज्यादा पैसे मतलब कॉस्ट ज्यादा लगती है उसमें, लेबर में, ठीक है। तो इसको एक बूट स्ट्रैप बिजनेस कहते हैं, यानी कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ और अपनी ऑपरेशंस को, मार्केटिंग को लो कॉस्ट पर रखना, ठीक है। फिर 3 साल के अंदर इस बिजनेस की ग्रोथ हुई, जिसमें पहले साल में इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। ऐसा होता है कि शुरू शुरू में आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो इट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि वो चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में फिर $14,000 का प्रॉफिट हुआ, एंड थर्ड फेज में एक्सपेंशन जब हो रही थी देन दे मूव टू अ प्रॉफिट ऑफ 32,000।
तो over 3 years, Zartech Solutions successfully bootstrapped its way from a small startup जब $20,000 से शुरू किया गया था initial funding through a thriving business of $150,000 in annual revenue. ठीक है, तो बेसिकली बूटस्ट्रैप करने के लिए आपको, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, दैट वी नीड टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड इन्वेस्ट जहाँ पे हमें ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की। अपने ऑपरेशंस को बहुत ही लीन रखना है, टाइम मनी एंड एफर्ट को वहीं लगाना है जहाँ पे ज़रूरत है। डिजिटल मार्केटिंग पे ज़्यादा रिलाई करना है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है और पेड भी होती है, लेकिन इनिशियली आप ऑर्गेनिक करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तब आप पेड मार्केटिंग की तरफ जाएं। ठीक है, तीसरा है कि आप कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स बनाएं, जैसे कि क्विल्ट प्रिंसिपल भी कहता है कि जो लोग आपकी हेल्प करेंगे मे बी वो अपनी स्किल सेट लाएं आपके साथ और उसके बेसिस पे आपका बिजनेस ग्रो करे। एंड लास्टली कि आपको क्रिएटिव फाइनेंसिंग की तरफ जाना है, यानी कि बड़े बड़े बैंक से लोन्स लेने के बजाय हमें चाहिए कि हम माइक्रो लोन्स की तरफ जाएं या पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता, यानी सूद भी नहीं हो, और वो इजीली आप उसको रिटर्न बैक भी कर सकें। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बूट स्ट्रैपिंग, जिसमें आप अपने बिजनेस को किस तरह से लो कॉस्ट पे लेकर फिर बढ़ा सकते हैं। फिर ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं विच कैन ऑल्सो हेल्प यू टू स्टार्ट अ बिजनेस विद लेस रिसोर्सेज, जैसे रिसेंटली फूड पांडा का एक होम शेफ का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चला है, जिसमें उनकी पूरी गाइडलाइंस हैं और हाउ कैन यू कैन अप्लाई फॉर, उनके प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस रजिस्टर कराते हैं और उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी सर्विसेज देख सकते हैं ऑफ अ होम शेफ, राइट। घर से बैठ के आपको कमाने का मौका मिल रहा है, उसमें उसमें कोई आप बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। आप उनका जो वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं आपको एज अ, अगर आप उनके क्लाइंट बन जाते हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कस्टमर जो होता है वो ऑर्डर देता है, उन्हीं का राइडर जो है वो उस ऑर्डर को डिलीवर करता है जाके, राइट। सो ये होम किचन विच इज फॉर फीमेल्स मेल्स वो दोनों मिल, मतलब दे कैन ऑल रजिस्टर ऑन दिस थिंग एंड स्टार्ट ऑफ देयर बिजनेसेस। एंड ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली थी, इजी पैसा, जो कि आजकल एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें इजी बिजनेस का भी एक पोर्टल इन लोगों ने लॉन्च किया है दैट कैन हेल्प स्मॉल बिजनेसेस टू गो डिजिटल। एंड इसमें आप अपनी सैलरी पेमेंट्स, वेंडर पेमेंट्स, ये सब कुछ आप इजी बिजनेस के उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा के। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो विदाउट एनी पेपर वर्क एंड इट कैन बी completed रिमोटली। तो अपनी टैक्स कैलकुलेशंस, एम्प्लॉयज की लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट, मतलब ये स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो ये सारी चीज़ें इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। लास्टली ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के आइडिया की डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे ये बिजनेस स्टार्टअप शीट है जो कि हम शेयर करते हैं अक्सर एंटरप्रेन्योर्स के साथ, कि इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को प्लान आउट कर सकते हैं बहुत बेसिक लेवल पे, राइट। कि जिसमें आपका एक विजन हो दैट मैं, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस। विजन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है दैट उसमें सिर्फ आपका ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सनल बेनिफिट के अलावा यू शुड सी कि आपकी माशरे को कैसे फ़ायदा हो रहा है उस बिजनेस से, राइट। फिर आप अपना बर्ड इन हैंड उसमें लिख सकते हैं कि आपकी अपनी क्या सलाहियतें हैं, कहाँ पे आप अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड मसाइल जो आपको लगता है कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं एंड यू कैन सॉल्व देम। वहीं से आप अपना बिजनेस आइडिया जनरेट करें और आपके बिजनेस की यूनिक सेलिंग प्रोposition क्या हो सकती है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से हट डिफरेंशिएट करती है। एंड इसी तरह का एक बिजनेस मॉडल कैनवस भी है। वो टेम्पलेट्स आर यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। इसके अंदर भी आप इसी तरह से अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स कि मुझे अपने बिजनेस से किधर किधर फायदा हो रहा है, किधर कौन सी कॉस्ट्स हैं जो मुझे इनकर करनी है, तो आप नीचे कॉस्ट स्ट्रक्चर के डब्बे में लिख लें। कस्टमर कौन से हैं जिनको मैं टारगेट कर सकती हूँ, मेरा वैल्यू प्रोposition क्या है, यानी मैं अपने बिजनेस से क्या चीज़ लोगों को ऑफर कर सकती हूँ।
तो ये सारी चीजें आप एक ही टेम्पलेट के अंदर अपने बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं। इसको आप कहीं पिन कर लें अपने सामने घर में, एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग इट। और क्योंकि ये वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं, राइट? आपके कस्टमर्स बदलते हैं, हो सकता है आपको आइडिया हो कि जी मेरा कस्टमर सेगमेंट कोई और भी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब ये टेम्पलेट्स आपको हेल्प करते हैं टू चॉक डाउन योर होल बिजनेस प्लान इन वन एट वन प्लेस, right? So this is all from my side. Thank you so much for attending the webinar. And if you have any questions, you can ask, Sean. You can raise your hand and then we can. जी फातिमा। हम्म, हाँ फातिमा, आपका सवाल था कोई? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। अच्छा, लेट मी सी द चैट। um, yes, we will share the links of all the videos, inshallah. Or you can type your message, the question in the chat box, अगर वो नहीं हो रहा तो। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको सेशन के बाद। Thank you, Mr. Ratif, for your feedback. मैं आपका सवाल नहीं समझी सईद साहब। आप पूछ रहे हैं कि मीडियम एसएमई के लिए बेसिकली सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट तरह के होते हैं। यानी आप अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं तो उसका मैंने आपको कुछ लिंक सेंड किए हैं कि जैसे जीरो या फिर क्विक बुक्स होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली काफी सारे आपको देखने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स कि आपकी अपनी टीम की एक्सपर्टीज किस में है। अम, उसके अस्सलाम हिसाब वालेकुम से। मैम। जी वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। मैम मैंने बहुत से कुछ सॉफ्टवेयर बनवाए भी और कुछ ये यूज़ किए, क्विक बुक्स और व्यापार इंडियन है। लेकिन मेरी जो टीम मेंबर है, जो मेरा ऑफिस सेक्रेटरी या असिस्टेंट, उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हम्म। उनमें चीज़ें जो है ना बहुत हिडन होती हैं, पहले यहाँ जाएं फिर वहाँ जाएं फिर वहाँ जाएं। मैं एक बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट फर्म रन कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने कोटेशंस बनानी होती हैं, इनवाइसेस। तो कोटेशन में जो डाटा हम दें
वो डायरेक्टली डेटाबेस में चला जाए। उसके लिए अलग से हमें आइटम्स क्रिएट ना करनी पड़े, खुद से उसको कोड हम्म। मिल जाए और वो आइटम उसमें ऐड हो जाए, और हर चीज बड़े बड़े आइकन में डिस्प्ले हो रही हो स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, बेसिकली इनवॉइसिंग और ये मतलब उसी के रिलेटेड है ना, काउंटिंग वाली जो साइड होती है। जी जी। में आप ये यही सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली, लेकिन इनके ना ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। जैसे ओडो आप ले लें, ODOO के नाम से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जीरो के नाम से है। तो इन सब की ना ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे। पहले आपको अपनी टीम को चाहिए कि आप उनको ट्रेनिंग दिलवाएं इसके ऊपर। जब वंस ट्रेनिंग मिलेगी तभी उसको यूज करना उनको सही बेहतर तरीके से आ सकेगा। विदाउट ट्रेनिंग ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आएगा कि वो किस तरह हो रहा है। फिर उनकी कई चीजें उसके अंदर हिडन, जैसे आपने कहा, कई फीचर्स होते हैं जो आप पेड होते हैं। तो वो सर्टेन टाइम के बाद अगर आप पेड वर्जन लेंगे तो वो फिर ओपन होता है आपके लिए। तो आपकी स्पेसिफिक जो क्वेरी है ना, जैसे इनवॉइसिंग अगर आपको डिजाइन करनी है, कभी कभार कुछ सॉफ्टवेयर्स में कस्टमाइज्ड नहीं होता। आपको कस्टमाइज्ड वर्जन या तो उनका लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। वो आपको उनके रिप्रेजेंटेटिव से या तो डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी, जो भी सॉफ्टवेयर आपको अम, आप लगता है कि आप यूज कर सकते हैं, और जो आपकी टीम आसानी से सीख सके, वो भी इम्पोर्टेंट। कोई मैम आप ऐसा सॉफ्टवेयर मैं जो आपको लिख पेड देती हूँ। सॉफ्टवेयर हो बिल्कुल। और जो यूजर फ्रेंडली हो, एक्चुअली शायद मैं बात समझा नहीं पाया पूरी तरह से। मुझे चाहिए तो वो कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल, लेकिन हम्म। ये जितने मौजूद हैं वो उनमें आपकी बहुत सारी नीड्स चीजें को। बैक एंड पे होती हैं। हाँ, मैं समझ गई। हाँ बिल्कुल, उसके बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप फ्रॉम स्क्रैच अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर डेवलप करें, लेकिन मतलब जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस तरह की आप इनवॉइसेस बनवाना चाह रहे हैं चीजें, वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल ना हो। ठीक है, जैसे हमारा माइक्रो फाइनेंसिंग का स्टार्टअप था, हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाना था, लेकिन हमें वो चीज ही नहीं मिल रही थी, उस तरह के टेम्पलेट्स नहीं मिल रहे थे उन सॉफ्टवेयर्स में, जो कि हमारी नीड को फुलफिल करें। तो फिर हमने फ्रॉम स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर खुद बनवाया। तो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, आप समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ उसमें, तो आप इनको एक्सप्लोर करें। और फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं वेबसाइट पे, उनसे बात करें। हो सकता है कि उससे कोई ना कोई सोल्यूशन आपको, टेलर बेस्ड सोल्यूशन, यानी जो आपकी नीड्स को पूरा करता हो, उस पे हेल्प हो सके। अच्छा, फाइ का आपका सवाल है कि हाँ श्योर, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको मेंटोरिंग चाहिए, तो हमारी Aura 360 की टीम भी मौजूद है, एंड हम सब हैं विच हु कैन हेल्प यू। जी इंशाल्लाह आतिफ साहब will give you our reference for the university. So, Shiza, I think you can take over now. Hmm. Um, All right, Jazakallah khair. So, a quick preview to our upcoming programs. हमने जो है, जैसे आपको पहले मेंशन किया कि हमारा जी मैग जो है वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके हम 9 सीजन अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो इसका अब अपकमिंग हमारा सीजन 10, विच इज़ दी मेगा सीजन, इट इज़ कमिंग अप 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हमारे 7 मॉड्यूल्स जो हैं उसमें हम कवर कर रहे हैं। बिजनेस है, पेरेंटिंग है, हेल्थ है, माइंड सेट है,
पर्सनल फाइनेंस है, लेगेसी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। एंड लाइक वी मेंशन बिफोर कि दिस इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम। इसको यूएसएसबी से इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजी का अवार्ड मिला था। इसमें हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर्स आते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, डिज़ाइन फॉर मदर्स, बाय मदर्स। सो इसमें जो है वो आप अगर किसी को जानते हैं, हम इसमें टीचर्स को भी इनरोल करते हैं बिकॉज टीचर्स भी स्पिरिचुअल मदर्स होती हैं, टीचर्स हों, मदर्स हों। इवन हमारे पास इसमें ग्रैंड मदर्स आती हैं जो कि 60 एज की होती हैं, लेकिन वो भी इस प्रोग्राम को बहुत इंजॉय करती हैं। और नेक्स्ट हमारा उसके बाद जो प्रोग्राम है वो लाइफस्टाइल एक्सलेंस कैंप आ रहा है 14 जुलाई को। दिस इज़ फॉर टीन्स। इसमें हम 9 मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं। अरबिक है, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल मार्केटिंग है, एआई है, लाइफस्टाइल है, कम्युनिकेशन है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है। ये वाला प्रोग्राम इस बार हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। हम इसको ऑन साइट भी कर चुके हैं, ऑनलाइन भी कर चुके हैं। इसका सीज़न 5 हम जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड पे करेंगे फ्रॉम 14 जुलाई टिल 24 जुलाई। और इसमें हम टीन्स को जो है वो अपने साथ इनरोल करेंगे, 13 से 18 की एज के जो बच्चे होते हैं। और इसी के साथ आपने क्योंकि वेबिनार अटेंड किया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर 20% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ आवर अपकमिंग प्रोग्राम्स एंड यू कैन यूज द कोड Friday30। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें and inshallah we will provide you the recording. Thank you for joining. Jazakallah khair, and let's keep the spirit of Fawzul Azim alive.